Just Look Hospital. Dr. Raina has helped on the pelvis floor clinic and neurology clinic at Just Look Hospital. He has done a lot of work in UK and at the Bristol Royal Infirmary in hospital. Amongst other things, he's also in the practice of urology for the over 35 years. And Dr. Raina is member of the International Neuromodulation Society and has written in many chapters in the society. So a warm welcome to you, Dr. Raina, and I hope that we have a very good session. Then I go on to Ms. Mahira Desai, who has helped us in the past before also. And Mahira is a clinical psychologist, a medical researcher, also working at Just Look Hospital. And she's the head of quality assurance and a counselor at Just Look. Madam Mahira has been given many awards for meritorious achievements in counseling and psychiatry. Dr. Sudeshna Ray, as and when she comes, I will do her introduction at that time. And I will now go quickly to Dr. Prem, who is attached to Graceful Living for many, many years. And he's the one who's always been very helpful in elderly are kept as comfortable as possible. Dr. Prem is primarily in the medical field as far as care for the adults is concerned, and he will help, and he's known to help everybody who's got any sort of medical issue, and urinary incontinence is certainly a medical issue. And I hope, Doc, that you will be able to shed some light on all these problems that the elderly are facing. Thanks. My last request is, unlike me, I hope that all of you can use a little Hindi at the time of speaking, so it becomes a little more interactive for all the participants also. Thank you very much, and over to you, Manoj. Thanks, Naval, for setting the tone. And good evening, welcome to all the panelists again. And Mike, I'll start with the question because the subject matter has already been laid out. And Dr. Shailesh Raina, the first question is to you. And as I said, हम हिंदी इंग्लिश दोनों में बात करेंगे. English जो बोलते हैं. What is urinary incontinence? And also the way is we'll keep rotating the question to each panelist. At the end of the session, we'll take questions from the audience who can put their notes in even the the Zoom notes, and then we will take the questions. And each panelist, I would request to talk to about each question 3 to 4 minutes, and we'll keep coming back to everybody. So over to you, Dr. Raina. Thank you for inviting me. It's nice to see many people. I see Dr. Prem, I see Mahira, and my regards to all. Thank you. Urinary incontinence में क्या होता है कि जो हम जब पेशाब करते हैं तो हमको मालूम होता है कि चलो पेशाब करना है, हम वो पेशाब रोक सकते हैं, फिर जब बाथरूम में जाते हैं तो हम आराम से पेशाब कर लेते हैं। अभी जब हम हमारी वो तकलीफ आ जाती है, उसमें क्या होता है कि हमको पहले कंट्रोल नहीं होता है। Means when we want to pass urine, we can't control. We have to look for the toilet and say, please open up, I want to pass urine. मगर हमको लीक नहीं होता है, हमारी पेशाब लीक नहीं होती, मगर हम पेशाब कंट्रोल नहीं कर सकते। उसको कहते हैं अर्ज इनकॉन्टिनेंस, कि हमारी अर्ज होती है और कंट्रोल नहीं कर सकते। दूसरी इनकॉन्टिनेंस ये होती है कि हम जब भी खांसी करते हैं तो हमको पेशाब लीक हो जाता है, हमको पेशाब करने की कोई चिंता भी नहीं होती है, मगर जैसे हम खांसी करते हैं पेशाब लीक हो जाता है। उसको कहते हैं स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस। तो अर्ज इनकॉन्टिनेंस और स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस दो किस्म के इनकॉन्टिनेंस है। तीसरी इनकॉन्टिनेंस ये है कि हमारी ब्लैडर पूरी भर जाती है, हमको डायबिटीज होती है या हमें ऑब्स्ट्रक्शन होती है काफी टाइम से, आपको मालूम नहीं है, और जब और पेशाब नहीं भर सकता है वो टिप टिप करके लीक होता है, तो हम जाते रहते हैं, कभी 10 सीसी कभी 15 सीसी। उसको कहते हैं ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। तो ये तीन किस्म की इनकॉन्टिनेंस हमको याद रखना चाहिए, अर्ज इनकॉन्टिनेंस, स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस और ओवरफ्लो इनकॉन्टिनेंस। और चौथी ये है जिसको हम कहते हैं न्यूरोलॉजिकल इनकॉन्टिनेंस। कई लोगों को फ्रंटल ट्यूमर्स होते हैं या अल्जाइमर्स होते हैं, जैसे बच्चा पास कर देता है, जब भी मर्जी यहाँ आप पेशाब कर लेते हैं, वो
इस जगह उस जगह पेशाब कर लेता है। तो ये 4 किस्म के इनकॉन्टिनेंस होते हैं। अगर हमको पेशेंट से बात करना है, जो हमारे पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, तो हमको बड़े आराम से उनको काफी सवाल पूछना चाहिए, फिर हमको मालूम पड़ेगा ये किस चीज की इनकॉन्टिनेंस है। और जो एल्डरली होते हैं, जैसे एल्डरली वुमेन होते हैं, उनको क्या होता है, उनकी ईस्ट्रोजन लेवल कम हो जाती है। जो मीनोपॉजल होते हैं, पोस्ट मीनोपॉजल, उनकी वो जो जहां से पेशाब करते हैं वो बंद नहीं होता है, मगर वो फाइब्रोटिक हो जाते हैं, इसलिए उनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस हो जाता है। तो ये हमको याद रखना चाहिए जब एल्डरली पेशेंट होते हैं। हर एक को प्रोस्टेट ऑब्स्ट्रक्शन नहीं होता है, कहीं को अर्ज होता है, कहीं को स्ट्रेस होता है, कहीं को ओवरफ्लो होता है, और किन्हीं को न्यूरोपैथिक डिजीज होते हैं जो न्यूरोपैथिक इनकॉन्टिनेंस होते हैं। तो दिस इज व्हाट इज यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस। थैंक यू डॉक्टर रैना। मैं आपके पास वापस सवाल पूछूंगा और बहुत काफी सवाल है आपके लिए भी। और डॉक्टर माहिरा, अब आपसे पूछना चाहता हूं कि ये साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या होता है यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का फॉर इन अ सीनियर सिटीजन, और किसके भी ऊपर जिसको ये तकलीफ आती है उनका क्या इम्पैक्ट होता है साइकोलॉजिकली? जी, थैंक यू मनोज जी। हाय डॉक्टर रायना, नाइस टू सी यू। अभी जो जैसे डॉक्टर रायना बता रहे थे, विमेन को इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम ज्यादा होता है, राइट? और यूजुअली मैं बस अभी पढ़ रही थी कुछ रिसर्च भी, तो 60 इयर्स के ऊपर की जो उम्र होती है, उनमें 15 to 30% विमेन को यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होता है। तो ये काफी सारा प्रेवलेंट है। अभी प्रॉब्लम है कि इसमें एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, वो स्टिग्मा का आ जाता है। लोगों को बहुत ही एम्बैरेसमेंट और शर्म आती है, जिसकी वजह से काफी सारे लोग ट्रीटमेंट भी नहीं लेने जाते हैं, राइट? अभी जब हमने पता किया है कि इन सब लोग जिनको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होता है, उनमें से कितने लोग कहते हैं कि मुझे मेरे लाइफ में उतना मजा नहीं आ रहा है, या ये तकलीफ की वजह से मेरा ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ जो हम कहते हैं, लाइफ सेटिस्फैक्शन जो हम कहते हैं, वो संतुष्टि लाइफ में से, वो 50% लोग कहते हैं जब उनको ये प्रॉब्लम होता है तो अफेक्ट हो जाता है। ये कैसे अफेक्ट होता है, क्या क्या अफेक्ट होता है, वो जानना जरूरी है। पहले तो जैसे मैं बोल रही थी, शर्मिंदगी होती है, एम्बैरेसमेंट होता है, काफी सारे लोगों को डिप्रेशन आ जाता है, डर लगने लगता है। ये जब अर्ज इनकॉन्टिनेंस जैसे डॉक्टर रायना बता रहे थे, तो वो होता है तो उनको हमेशा डर ही लगता है कि मुझे बाथरूम जाना पड़ेगा कैसे, अगर कपड़ों में हो गया, मैं बाहर सोशल लाइफ में हूँ। तो ऐसे इम्पैक्ट पर्सनल में भी होता है और सोशल लाइफ में भी होने लगता है। तो काफी अक्सर ये प्रॉब्लम की वजह से लोग बाहर जाना बंद कर देते हैं, अपनी हॉबीज को परस्यू करना बंद कर देते हैं। इन लोगों में स्ट्रेस ज्यादा, डिप्रेशन ज्यादा, अपने आप के लोगों में सेक्सुअल फंक्शनिंग भी काफी डाउन हो जाता है, इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स काफी हद तक स्ट्रेन हो जाते हैं, क्योंकि जब एल्डरली में होता है तो फैमिली मेंबर्स को भी ख्याल रखना पड़ता है और उनको अक्सर प्रॉब्लम समझ में नहीं आता है, तो वो फ्रिक्शन बढ़ने लगता है फैमिली के अंदर, क्योंकि अक्सर ये अर्ज आता है या बाथरूम जाना होता है, तो कभी कभी वेटिंग की वजह से रिस्क ऑफ फॉल, या उनको अर्जेंट जाना है तो वो उतना केयरफुली नहीं चलेंगे, उसके वजह से रिस्क ऑफ फॉल बढ़ जाता है, राइट? और इन सब कारणों से ओवरऑल जो लाइफ सेटिस्फैक्शन होता है वो कम हो जाता है। जी, तो ब्रॉडली अगर हम देखें, इसका इम्पैक्ट खुद पे भी होता है, इमोशन मूड पे भी होता है, बाकी के सोशल सेटअप में भी होता है, और फैमिली और कम्युनिटी तक भी जाता है। ओवर टू यू मनोज जी। या थैंक यू माहिरा। एंड प्रेम, इसका आपसे सवाल ये है कि एजिंग चेंजेस जैसा उसने बताया, व्हाट आर द एजिंग चेंजेस विद द जेनिटो यूरिनरी सिस्टम फ्रॉम अ क्लिनिकल स्टैंड पॉइंट? आप जरा एक्सप्लेन करिए। Of course, it's good to be back on the panel, and with Raina sir around. Obviously, he's the boss, but I will obviously try to just add some things as far as aging changes are concerned. So yeah, I mean, एक तो होता है कि जो किडनी रहते हैं उसकी जो साइज है वो कम होती है एज यू गेट ओल्डर। सो हमें समझ में आना चाहिए कि अगर वो किडनी आपकी 80 साल
आप 80 साल के हैं तो किडनी ने भी 80 साल काम किया है, ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ 1-2 साल काम किया है उसने, तो ऑब्वियसली वो एजिंग चेंज होगा उस पे। फिर ब्लड फ्लो जो जो हर ऑर्गन रहता है हमारे बॉडी में, चाहे वो हार्ट हो, ऑफ कोर्स हार्ट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, वो पंप करता है खून हर जगह, तो पर ब्लड फ्लो भी जो रहता है वो थोड़ा-सा कम हो जाता है किडनी को। फिर किडनी में एक बहुत ही हर चीज़ में जैसे बोलते हैं ना कि बिल्डिंग है उसमें सीमेंटिंग रहती है और उसमें बिल्डिंग ब्लॉक्स रहते हैं। तो वैसे किडनी में भी एक चीज़ रहती है जिसको हम नेफ्रॉन कहते हैं, वो मेहनत करता है कि जो भी हमारी जो बॉडी की गंदगी है उसको फ़िल्टर करे और बाहर पेशाब बना के उसको भेजे। तो उसकी भी जो काम करने की क्षमता है, वो भी काफ़ी कम हो जाती है। फिर एक और चीज़ है कि हमारी जो ब्लड प्रेशर की कंट्रोल होती है, वो भी काफ़ी कम होती है। तो हमें समझ में आना चाहिए कि ब्लड प्रेशर के कंट्रोल में ना ही दिल पर किडनी का भी बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण एक जगह होती है। फिर जो ब्लैडर, जो पेशाब की थैली जिसको कहते हैं हम, उसका भी थोड़ा जो साइज़ रहता है, वो थोड़ा कम हो जाता है और बहुत टेंडेंसी ये रहती है कि बार-बार पेशाब जाना पड़ता है। अ, सबसे बड़ी बात मैं ये ऐड करना चाहूँगा कि हमें जो दिखता है ऐसे ऐसे काफ़ी चीज़ें रहती हैं, 2 चीज़ें रहती हैं। एक तो रहता है जिसको हम स्फिंक्टर कहते हैं। स्फिंक्टर मतलब एक बोलते हैं ना एक वाल्व जैसा रहता है जिसकी वज़ह से हम पेशाब जा सकते हैं, जो हमारे कंट्रोल में होता है। तो एक जो स्फिंक्टर है तो हमारे कंट्रोल में नहीं रहता है और दूसरा जो बाहर वाला रहता है तो हमारे कंट्रोल में रहता है। पर इसकी जो फंक्शनिंग है, आगे चल के वो भी खराब हो जाती है। सबसे बड़ी चीज़ मैं बुजुर्गों और उनकी उम्र बढ़ने के साथ आपको बताऊँगा कि आप समझ में लीजिए पेशाब छूट जाना एक आपके नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग नहीं है। अगर पेशाब छूट रहा है तो प्लीज़ आप उसके लिए अपने डॉक्टर के पास जाइए और अगर आपको लगेगा तो ऑब्वियसली वो आपको बोलेंगे शायद यूरोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े, चाहे गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाना पड़े। ऑफ कोर्स डॉक्टर रे जब जॉइन करेंगे तो उसको भी हम थोड़ा और सब्सटैंशिएट करेंगे। क्योंकि इसमें जो जैसे माहिरा ने ऑलरेडी बोल दिया है कि शारीरिक जो शारीरिक क्षमता कम होती है, उसके साथ-साथ जो मानसिक प्रभाव पड़ता है, वो बहुत ज़्यादा रहता है। क्योंकि मैंने बहुत सारे बुज़ुर्ग देखे जो पेशाब छूट जाने के पहले बहुत एक्टिव रहते थे, पर फिर उनको लगता है कि मैं पब्लिक में चले जाऊँ और फिर पेशाब छूट गया तो क्या? तो फिर और एक मैं मतलब किसी का भी पेशाब छूट जाना मतलब एक अपने सेल्फ कंट्रोल को का छूट जाना होता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो डिग्निटी की हम बात करते हैं कि मतलब पेशाब छूट गया, तो उसके ऊपर वो मानसिक स्थिति में काफ़ी इफ़ेक्ट होता है। इसीलिए आप ये मत सोचिए कि वो पेशाब छूटने वाला है, आप ये सोचिए कि वो पेशाब छूटने को आप रोक कैसे सकते हैं, क्योंकि कारण बहुत ज़्यादा होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात वापस मैं बोल रहा हूँ, ये आपकी उम्र के साथ-साथ नॉर्मल चीज़ नहीं है। अगर पेशाब छूट रहा है या आपका कंट्रोल पहले से कम हो रहा है या बार-बार आपको जाना पड़ रहा है, बहुत सारे टाइम नींद खराब होती है लोगों की, बहुत सारे टाइम पूरे दिन ही बार-बार जा रहे हैं। तो उसके कारण कई रहते हैं, कभी-कभी दवाइयाँ भी रहती हैं, बहुत सारे कारण हैं। अमाउंट ऑफ वाटर जो आप ले रहे हैं वो भी है, 2-3 लीटर, 4 लीटर, 5 लीटर बहुत सारे लोगों को लेना होता है। मैं इतना हो कहूँगा कि डिफरेंट बुजुर्गों के लिए द अमाउंट ऑफ वाटर इनटेक अलग रहता है, तो वो स्पेसिफिकली चेंज होता है। तो उसपे भी हम आगे चल के प्रेम बात विल करेंगे। प्रेम या हाँ, मैं अभी आपको थोड़ा पॉज़ करूँगा बिकॉज़ वील गो टू द अदर पैनलिस्ट एंड आई विल कम बैक टू यू। तो डॉक्टर रैना बैक टू यू। जैसे प्रेम ने बताया, अगर लोगों ने एक आइडेंटिफाई किया और आप यूरोलॉजिस्ट हो, आपके पास आए, तो बेसिकली कब आना चाहिए उनको और आप क्या सलाह देते हैं उनको? क्या टेस्ट करना चाहिए कि क्या करना चाहिए? मेरे पास अगर एक एल्डरली लेडी आएंगे तो फिर मैं उनका हार्मोनल प्रोफाइल देखूंगा। मैं एक सोनोग्राफी करके देखूंगा क्या वो एम्प्टी कर रही है ब्लैडर को फुली, कि कुछ पेशाब रह जाता है। अगर कुछ पेशाब रह जाता है तो मैं एक सिंपल सा प्रोसीजर होता है कि उसको मैं थोड़ा चौड़ा कर लूं तो वो ठीक से पेशाब हो सकती है। अगर अर्ज इनकॉन्टिनेंस होता है तो उसके लिए दवा है, काफी दवाइयां हैं। और मोस्ट इम्पोर्टेंट कि मैं उनको समझाऊंगा कि आपका प्रॉब्लम क्या है, ताकि वो अपना जो लाइफस्टाइल है उसी प्रॉब्लम के हिसाब से वो अपना लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। अगर उनको पास स्ट्रेस इनकॉन्फिडेंस है, यानी कि वो खांसी करते हैं तो पेशाब लीक हो जाता है, तो फिर मैं उनको ये बोलूंगा कि जब भी आपको पेशाब करने के मन हुई तो आपने जो लेग्स को क्रॉस कर लीजिएगा।
जैसे वो लेग्स क्रॉस कर लेते हैं, वो जो वो स्फिंक्टर कह रहे थे प्रेम जी, तो वो स्फिंक्टर टाइट हो जाता है उसी वक्त, तो वो खांसी करेंगे मगर वहां लीक नहीं होगा। खांसी करें तो लीक नहीं होगा क्योंकि वो स्ट्रेस होते हैं, वो स्फिंक्टर को टाइट कर लेते हैं। और अगर उनको अर्ज इनकॉन्टिनेंस है उसके लिए दवाइयां हैं। और हम ये भी देख सकते हैं उनको कि कई बड़े एल्डरली पेशेंट्स होते हैं, काफी एल्डरली होते हैं, जो पैड्स पहनते हैं। हमको वो समझाना है कि पैड्स पहनने से इतना अच्छी चीज नहीं है कि वहां फंगस इन्फेक्शन होता है, काफी चीज हो जाती। एक जीडियाटिक डॉक्टर्स होते हैं, जीडियाटिक मेडिसिन, प्रेम जी भी यहाँ बैठे हैं, महिरा भी साइकोलॉजिस्ट है, तो उनके लिए उनका हेल्प बहुत जरूरी होता है। वो उनको बिल्कुल लाइफस्टाइल चेंज कर सकते हैं। और काफी लोगों है जिनके पैड्स वैड्स कम हो जाते हैं। काफी लोग हैं जिनको शर्म आती है, जैसे लोगों ने बोला, तो उनको पहले ये बोलना है कि ये ट्रीटेबल है, या तो एंडोस्कोपी से या छोटे सर्जरी से। तो सबसे पहले हम चाहते हैं देखने के लिए कि एक सोनोग्राफी करते हैं, पेशाब की जांच करते हैं इन्फेक्शन है कि नहीं, और अगर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है तो काफी इन्वेस्टिगेशंस कर सकते हैं, पर हम हमेशा सिंपल से शुरू करते हैं, देन वी गो ऑन टू लार्जर थिंग्स। दैट इज इट। थैंक यू सो मच, आपने इतनी बढ़िया एक्सप्लेन किया, एंड वील कम बैक टू यू अगेन सर। एंड माहिरा अगेन, मगर ये जो साइकोलॉजिकली होता है कंसर्न, इसके थ्रू और बढ़ जाता है क्या, वर्सन हो जाता है क्या यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस? जी मनोज जी, बिल्कुल यही होता है। अभी क्या हमने फाइंड किया है ना कि जो ब्लैडर कंट्रोल का ब्रेन में पाथवे होता है, एक तो है द सेरोटोनर्जिक पाथवे, दूसरा है द नॉर एड्रेनर्जिक पाथवे। ये दोनों ही है ना ब्लैडर कंट्रोल में भी इन्वॉल्व होते हैं और मेंटल हेल्थ में, डिप्रेशन और एंजाइटी में भी इन्वॉल्व रहते हैं। इसकी वजह से क्या हमने फाइंड किया है कि जब किसी को डिप्रेशन या कोई भी मेंटल हेल्थ कंसर्न, ज्यादा स्ट्रेस होता है, या तो डिप्रेशन का प्रॉब्लम रहता है या तो एंजाइटी का प्रॉब्लम होता है, तो उनका रिस्क यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के लिए बढ़ जाता है। तो अगर मुझे ऑलरेडी डिप्रेशन या एंजाइटी है तो मेरा रिस्क यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने का बढ़ जाता है। ऑल्सो अक्सर अगर मैं डिप्रेशन या एंजाइटी के लिए दवाई कुछ ले रहे हैं, एंटी डिप्रेशन मेडिकेशन कुछ चल रहा है, वो भी वही पाथवे पे एक्ट कर रहा है, उसकी वजह से भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस होने का रिस्क बढ़ सकता है, राइट? तो अगर आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम होता है तो फिर यूरोलॉजिस्ट के पास या तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाके वो मेडिकेशन का एडजस्टमेंट करना जरूरी है। जैसे डॉक्टर प्रेम ने कहा था, उसको एक्सेप्ट मत कीजिए कि ये तो नॉर्मल है, अभी उम्र हुआ है तो होना ही है। दैट इज नॉट ट्रू, बट इट इज इम्पोर्टेंट कि हम जाने कि ये दोनों का कनेक्शन बहुत ही क्लोज है। अभी तीसरा सिचुएशन ये होता है कि अगर जनरली कुछ लोगों के शरीर में कुछ कुछ हिस्से स्ट्रांग रहते हैं, कुछ कुछ चीजों में वीक रहता है, तो अगर हमें वीक ब्लैडर का टेंडेंसी होता है और लाइफ में स्ट्रेस बढ़ जाता है, तो भी ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होने का चांस बढ़ जाता है। तो ये एक सेक्शन है जहां पे हमें समझना जरूरी है कि ये दोनों काफी इंटरकनेक्टेड होते हैं। ऑल्सो अक्सर काफी हम ये भी देखते हैं कि लोगों जिनको मानसिक तनाव होते हैं, मेंटल हेल्थ के कोई भी कंसर्न्स रहते हैं, उनमें सेल्फ केयर और सेल्फ निग्लेक्ट काफी ज्यादा हो जाता है, जिसके वजह से भी यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का रिस्क बढ़ जाता है। तो ये हम इंटरकनेक्शन देखते हैं। ओवर टू यू मनोज जी। थैंक यू माहिरा। प्रेम, बैक टू यू। ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस को हम जेरियाट्रिक सिंड्रोम क्यों बोलते हैं? I mean, just being an extension on what both the panelists have actually said. Now, वो जो नाम जेरियाट्रिक सिंड्रोम है वो बहुत खतरनाक दिखता है। तो जेरियाट्रिक सिंड्रोम यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस क्यों है? क्योंकि इसके वजह से 2-3 चीजें खराब होती हैं जो स्वतंत्रता या क्वालिटी ऑफ लाइफ या इंडिपेंडेंस की जो बात करते हैं हम ओल्डर पर्सन्स की, बुजुर्गों की, उसको अफेक्ट करती है। तो एक तो है कि क्वालिटी ऑफ लाइफ खराब हो जाती है, दूसरी है कि डिसेबिलिटी और बढ़ जाती है कि बाहर नहीं जाना, अगर पेशाब की प्रॉब्लम है
तो फिर जैसे सर ने बोला था, बहुत सारे लोग फिर पैड लगाते हैं। अगर बेड रिडन हो तो और भी उसका तो कॉज अलग ही रहता है, बिकॉज दे कैन नॉट मूव अराउंड, सो ज्यादा चॉइस नहीं रहता, क्योंकि कभी कभी ऑफकोर्स कैथेटराइज भी करना पड़ता है। पर अगर पैड में रहते हैं तो फिर उसके अलग रिस्क होते हैं। अगर हम फॉर एग्जाम्पल पोजिशन चेंज नहीं कर पा रहे हैं तो बेड सोर होने का प्रॉब्लम भी है, जो एक और जेरियाट्रिक सिंड्रोम है। मतलब एक चीज को हम केयर करते हुए एक और चीज हो सकता है। और तीसरी चीज है कि एक बार वो डिपेंडेंसी आ गया तो कभी कभी इस हद तक आ सकता है कि वो ना जाए, और ये सबसे बड़ी चिंता बुजुर्गों को रहती है कि मेरी जो इंडिपेंडेंस है, मेरी जो स्वतंत्रता है, ये चली जाएगी। अब जैसे कारण बहुत है, फॉर एग्जाम्पल अगर अगर पेशाब में इन्फेक्शन होता है तो पेशाब छूट जाता है, पर उसका मतलब ये नहीं है कि वो ठीक नहीं हो सकता। जैसे सर ने बोला कि ट्रीटेबल, तो कॉज पता लग के उसको ट्रीट करना जरूरी है। अगर हम इन्फेक्शन को ट्रीट कर देंगे तो पेशाब छूटना बंद हो जाएगा। फिर चाहे प्रोस्टेट की बात हो, प्रोस्टेट का साइज अगर बढ़ गया तो फिर उसको ऑफ कोर्स मेडिसिन में भी कर सकते हैं, और सर्जिकल ऑफ कोर्स डिपेंडिंग अपॉन अगर जरूरत पड़े तो उसको हम करें तो फिर वो भी ठीक हो सकता है। फिर एक और चीज रहती है जिसको हम फंक्शनल इनकॉन्टिनेंस कहते हैं। उसका मतलब ये है कि इंडिपेंडेंस नहीं है हमें और फिर हम नहीं जा पा रहे हैं। और माहिरा को जस्ट एक्सटेंड करते हुए बोलूंगा, एक साइकोलॉजिकल कंपोनेंट थोड़े लोगों को रहता है कि वो घर के अलावा कहीं नहीं जा सकते, तो बाहर के टॉयलेट में उनको नहीं वो जा सकते, तो ऑफ कोर्स उसके लिए मॉडिफाई करते हैं चीजें खुद। जैसे मतलब पानी कम पीना ट्रैवल के टाइम, सो ऑल दो थिंग्स कैन बी मॉडिफाइड। तो अगर अगर इसको होने ना दे, पेशाब छूटना, या उसको कंट्रोल में रखे, तो स्वतंत्रता कायम रहती है। और इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट जेरियाट्रिक सिंड्रोम है। और वापस कहूंगा, ट्रीटेबल चीजों को ट्रीट करने की जरूरत है, उसके बारे में सिर्फ डरने की जरूरत नहीं है। सो आई थिंक दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओवर टू यू मनोज जी। Thank you, Prem, for explaining so beautifully. Dr. Rehna, वापस आपके पास आ रहे हैं। माहिरा ने अपना psychological aspect और बताया. Prem has also explained clinically. What else would you like to add? Because as you would know, हमारी जो audience है, caregivers भी है और senior citizens भी है. तो और आप क्या अपने इतने extensive experience से share करना चाहेंगे इनके? वैसे तो प्रेम जी और मैंने ने सब बोल चुके हैं। अभी मैं कुछ ऑपरेशंस के बारे में शेयर करूंगा। सबसे पहले यह है कि सब लोग सोचते हैं कि हमारा प्रोस्टेट बढ़ गया और हमारा प्रोस्टेट का साइज बड़ा हो गया। मैं ये कहना चाहता हूं कि जब तक आपको पेशाब में प्रॉब्लम नहीं है, आपको प्रोस्टेट ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। साइज ऑफ द प्रोस्टेट इज नो क्राइटेरिया ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन। ये हम जब मरीज देखते हैं, वो आते हैं हमारे पास कि देखो हमारी सोनोग्राफी बहुत बड़ा प्रोस्टेट हो गया, क्या करें। सिर्फ दो चीज कहना चाहता हूं मैं, अगर आपकी पेशाब की धार अच्छी है और आपको प्रॉब्लम नहीं है, तो आपको प्रोस्टेट जितना भी बड़ा हो उसके लिए आपको इलाज नहीं चाहिए। दूसरी बात यह है कि यू कैन हैव अ फैट मैन हु इज वेरी एक्टिव एंड अ थिन मैन हु इज वेरी लेजी। तो एक छोटा प्रोस्टेट भी ऑब्स्ट्रक्ट कर सकता है, और अगर वो करता है तो उसकी साइज इतनी बड़ी नहीं है, मगर आपका पेशाब रह जाता है, आपकी पेशाब की धार अच्छी नहीं है और आपको बार बार पेशाब करना और काफी पेशाब रह जाता है, फिर आपको उस प्रोस्टेट के लिए इलाज जरूरी चाहिए। यानी कि या पहले सबसे पहले दवाइयां, वो दवाइयां से ठीक नहीं होती है, फिर सर्जरी होती है। अगर आपका पीएसए नॉर्मल है तो आपको किसी और जांच की जरूरत नहीं है, दवाइयां उससे नहीं तो फिर एक सर्जरी करते हैं हम, एंडोस्कोपी। अगर आपका पीएसए नॉर्मल नहीं है तो ऐसा हो सकता है कि आपको प्रोस्टेट का कैंसर है। वो अलग चीज है, वो कंप्लीटली अलग चीज है, तो उसके लिए अलग ही अलग इलाज होता है। तो पीएसए, यूरिन फ्लो और कितना पेशाब रह जाता है। कई ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि मेरी उम्र इतनी हो गई है, अब मैं कैसे ये इलाज लूं। मगर अगर आपका पेशाब रुका हुआ है और काफी पेशाब अंदर है, तो आपकी जितने भी उम्र हो वो ब्लॉकेज ठीक करेंगे तो आपको ठीक लगेगा। अगर आपकी पेशाब की थैली बहुत कमजोर है, फिर वो दूसरी बात है। बहुत कमजोर पेशाब की थैली के लिए इलाज है, और वो इलाज लाइफस्टाइल चेंजेस है,
कैथेटर कभी लोग लगाते हैं, अगर आपकी पेशाब की थैली बहुत कमजोर है तो कैथेटर सुबह शाम डाल के उनकी जो कमजोरी है उनकी टोन पिकअप हो सकती है। So that is for men. As far as ladies are concerned, अगर आपकी स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस है तो फिर एक सर्जरीज हैं जो बड़े एंडोस्कोपिक सर्जरीज हैं, जिससे हम मैश लगाते हैं, एक टेप लगाते हैं और वो पेशाब ठीक हो जाता है। कई लोगों हैं जिनको फिस्टुला होते हैं, यानी कि उनकी लीक होता रहता है, मगर वो जो कनेक्शन ब्लैडर और वजाइना के बीच में से जाता है और वो कभी ठीक नहीं होता जब तक उस कनेक्शन को हम ठीक ना करें सर्जिकली। उनको यूरिनरी फिस्टुला बोलते हैं। और इन लेडीज को क्या होता है, उनका हमेशा एक पैड गीला गीला रहता है, पेशाब भी होता है और पैड गीला भी होता है। और जब वो स्टिंक हो जाता है ना, तो वो बेचारे एक कोने पे बैठे रहते हैं। अब जब भी देखेंगे कोई एक कोने पे बैठा है और उसके पैड ही पैड गीले हो रहे हैं, ये सोचना कि उसको एक यूरिनरी फिस्टुला हो सकता है, मगर क्योंकि वो बदबू आती है वो बाहर नहीं जाती है, एक अकेले में बैठे रहते हैं। और चौथा, वो पेशेंट्स भी है जिनको ऑपरेशन कर चुके हैं, वो दे हैव बीन ऑपरेटेड बट गॉड फॉरबिड सम प्रॉब्लम हैज टेकन प्लेस। जैसे कि प्रीमियम ने कहा स्फिंक्टर, अगर उनके स्फिंक्टर डैमेज है, आजकल एक आर्टिफिशियल स्फिंक्टर भी लगा सकते हैं, दैट्स द लास्ट। कई पेशेंट हैं जिनको न्यूरोपैथिक ब्लैडर होते हैं मगर उनका ब्लैडर बहुत कमजोर है, उनके लिए भी न्यूरोमॉड्यूलेशन है। हर एक चीज के लिए इलाज है, बट ये इलाज ये नहीं कि सिर्फ यूरोलॉजिस्ट करेगा, वो गलत है। ये जो इलाज इनकॉन्टिनेंस का है, स्पेशली एल्डरली इनकॉन्टिनेंस, ये इलाज एक कमिटेड डॉक्टर्स करते हैं, उनमें से यूरोलॉजिस्ट, गायनेकोलॉजिस्ट, जीरियाट्रिक मेडिसिन, साइकोलॉजिस्ट, ये सब इकट्ठे बैठ के उनको इलाज करेंगे। अगर हम सोचेंगे हम यूरोलॉजिस्ट हैं, हमें यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ट्रीट करेंगे, तो वो गलत चीज है। अगर हमको यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस ठीक करना है, फीमेल, मेल, चिल्ड्रन जो भी है, तो फिर एक इनकॉन्टिनेंस डॉक्टर्स की जो फोरम होती है, वो सब स्पेशलिटीज मिलके, क्योंकि हम चाहते हैं कि ये मरीज ठीक हो जाए। थैंक यू। Thank you, Dr. Raina. We'd like to welcome Dr. Sudeshna Raj, who's a gynecologist. Sudeshna, welcome, and हमने already for the next three panelists. ये तो बंगाली सुदेशना रे। It's Sudeshna Ray, sir. Yeah. It's Sudeshna Ray. Ray. So, ये question the सवाल ये है आपसे कि we've already discussed in last 30 minutes on various aspects, and Dr. Raina, Prem, Mahira have already given their views. From you specifically, from a gynac standpoint of view, can you explain various types of urinary continence in women? काफी लोगों ने explain किया प्रेम और उन्होंने, but if you could add from your perspective. नहीं, add, हाँ, नमस्कार पहले सबको एकदम हार्दिक नमस्कार। थोड़ा लेट हुआ मुझे आने में, सॉरी फॉर दैट। बट ये जो इनकॉन्टिनेंस की बात मैं सुन रही थी आपसे, मोरलेस ऐड करने का कुछ नहीं है। वेमेन में भी सेम टाइप ऑफ इनकॉन्टिनेंस होता है। एक होता है कि कंट्रोल करना मुश्किल होता है, एक होता है अगर मतलब अर्ज आता है तो बाथरूम जाते जाते निकल जाती है, इसको अर्ज इनकॉन्टिनेंस बोलते हैं। एक होता है कि फ्रीक्वेंसी बहुत घड़ी घड़ी जाना पड़ता है, तो ये भी एक टाइप का इनकॉन्टिनेंस होता है। थर्ड टाइप का इनकॉन्टिनेंस विमेन में बहुत ज्यादा दिखता है कि वो खांसी से, छींकने से या बहुत जोर से हंसने से थोड़ा बहुत यूरिन लीक हो जाती है। Now, ये सब कुछ मोस्ट ऑफ द विमेन को ऐसा लगता है कि एकदम, जब ऐसा नहीं कि ये खाली एल्डरली को होता है, ये यंग वुमेन को भी होता है, लेकिन यंग वुमेन में भी सोचते हैं कि ये तो नॉर्मल है, इसको अभी से ट्रीट मत करो, ये नॉर्मल है, ये ठीक हो जाएगा। जबकि ये प्रॉब्लम ये है कि ये कभी ठीक नहीं होता है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, स्पेशली फॉर वुमेन, मेनोपॉज का जो इवेंट होता है, जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाता है, ओवरीज का हार्मोनल सपोर्ट बंद हो जाता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम्स वर्सन होता है।
जब तक ओवरीज बहुत अच्छा हार्मोनल सपोर्ट देता है वेजाइना को और ब्लैडर को और पेल्विक फ्लोर पूरा मसल्स को, जैसे डॉक्टर रैना ने बोला कि ये पूरा इनकॉन्टिनेंस का एक फोरम होता है, वो पेल्विक फ्लोर के ऊपर ही काम करते हैं। वो पेल्विक फ्लोर बहुत इंपॉर्टेंट होता है फीमेल में, क्योंकि फीमेल्स में पेल्विक फ्लोर का इंसल्ट बहुत ज्यादा होता है प्रेगनेंसी में। प्रेगनेंसी के बाद एक तो प्रेगनेंसी, it is not only the delivery process, it is also the pregnancy. Every pregnancy that you have, ये pelvic floor के ऊपर एक बहुत बड़ा मतलब एक चैलेंज होता है। उसके बाद प्रेगनेंसी के बाद डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी हो या सिजेरियन हो, डिलीवरी के बाद भी पेल्विक फ्लोर मसल्स को कमजोरी आ जाती है। तो ये सब प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं कि एल्डरली को होता है, यूजुअली these problems are even seen in younger women. जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वो वर्सन होता जाता है। Thank you. Thank you. And here I will again call Mahira. My question to you, Mahira, is how to cope with the psychological concerns caused by, you know, the subject we are discussing. उसको coping कैसा किया जाए? Ji, I'm going to go back to some strategy I think we had come up with last time, and I feel that forms a good platform to start, which are my 3 A's. Okay? I think the beginning point is where all can there be a psychological impact or an obstruction, and how can we overcome that? I think the biggest starting point is by acceptance. You know, Dr. Ray just mentioned, welcome to have you. Dr. Prem mentioned, Dr. Reina was also sort of emphasizing कि बहुत सारे लोग को एक्सेप्ट ही नहीं करना है कि ये ट्रीटेबल प्रॉब्लम है, राइट? तो पहला तो जरूरी है एक्सेप्ट करना कि ठीक है मुझे प्रॉब्लम हो रहा है। यंगर एज में कभी कभी लगता है चलो स्ट्रेस जो इनकॉन्टिनेंस होता है, जो छींक में पेशाब निकल जाता है, हमें लगता है अरे ये गलती से हो गया, 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, और हम इग्नोर करने की कोशिश करते हैं। जितना जल्दी कोई भी बीमारी में जितना जल्दी हम एक्सेप्ट कर पाए कि तकलीफ हो रहा है, उतना ही जल्दी हम उसका सल्यूशन ढूंढ पाएंगे, राइट? इसके वजह से एम्बैरेसमेंट भी कैसा होता, बहुत लोगों को होता है कि मैं कैसे जाके डॉक्टर को बताऊं, ट्रीटमेंट करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे। फिक्र नहीं करना है, क्योंकि ये एक प्रॉब्लम हमारी लाइफ के बहुत सारी जगहों पे, बहुत अलग अलग एस्पेक्ट्स पे असर करता है। तो पहले तो है हमें एक्सेप्ट करना है कि तकलीफ है। दूसरा बात, और ये आई थिंक वेबिनार सबके लिए बहुत ही जरूरी इसी प्रकार से हुआ है कि हम अवेयरनेस ला सके। दूसरा ए है अवेयरनेस के लिए। अवेयरनेस किसके बारे में? अलग अलग तरह का जो प्रॉब्लम हो सके, क्या क्या टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स हो सकता है, उसका क्या क्या टाइप ऑफ ट्रीटमेंट हो सकता है। हर एक छोटा प्रॉब्लम का इलाज बहुत बड़ा होना जरूरी नहीं है। जैसे डॉक्टर रायना ने भी बताया, शुरुआत हमेशा छोटी जगह से होती है। तो एक तो समझना कि हमारा प्रॉब्लम एग्जैक्टली क्या है, हमारा ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या है, वो फाइंड आउट करना। और तीसरा, ये साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट से मुझे बहुत जरूरी लगता है कि ये एक तकलीफ है, पर ये एक तकलीफ का मेरी बाकी जिंदगी पे क्या असर पड़ रहा है, उसे इग्नोर नहीं करना है। मेरे डेली लिविंग, मेरी क्वालिटी ऑफ लाइफ में क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, वो जानना जरूरी है। और जब हम तीसरा ए पे जाए, जो है एक्शन, इसके बारे में क्या करना है, उसमें भी मुझे लगता है दो तरह का अप्रोच होना जरूरी है। एक तो है जो मेडिकल ट्रीटमेंट और एक्चुअल प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढना, पर दूसरा बहुत जरूरी है कि इस प्रॉब्लम की वजह से मेरे मानसिक हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट हुआ है, उसका इलाज ढूंढना। दूसरा है ये मेरे सोशल लाइफ में, मेरे सोशल सर्कल में क्या इम्पैक्ट कर रहा है, उसका सल्यूशन ढूंढना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि ये यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस अगर सॉल्व भी हो जाए, डर बैठ जाता है लोगों में, कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है, सेल्फ एस्टीम डाउन हो जाता है, और प्रॉब्लम सॉल्व होने के बाद भी वो लोग बाहर नहीं जाते हैं, वो लोग सोशलाइज नहीं करते हैं, और उनका ओवरऑल क्वालिटी ऑफ लाइफ डाउन हो जाता है। कभी कभार अनफॉर्चुनेटली अगर ये प्रॉब्लम का ट्रीटमेंट ना हो पाए, और अगर हमें पता भी चले कि ठीक है ये मुझे जिंदगी भर इसके साथ मुझे डील करना पड़ता है,
उसका मतलब ये नहीं है कि मेरे लाइफ में जो अलग दिशाओं में असर पड़ रहा है, मैं फिर भी मेरे हॉबीज परस्यू कर सकती हूँ। मैं फिर भी जाके मेरे दोस्तों से, फैमिली में मिल-जुलना हम कर सकते हैं। और उसके लिए क्या ऑप्शंस है, हम हमारे लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस कर सकते हैं। जैसे वो बता रहे थे पहले भी डॉक्टर्स कि हम या तो पानी कम ले या तो आर्टिफिशियल स्फिंक्टर का ऑप्शन रहेगा, या कुछ और लाइफस्टाइल चेंजेस कर सके ताकि हमारी लाइफ चलती रहे। आई फील दैट इज एन ओवरऑल अप्रोच। सो 3 A's: एक्सेप्ट करना, अवेयरनेस लाना, और तीसरा है इसके बारे में एक्शन लेना। थैंक यू। ओवर टू यू मनोज जी। Thanks, Mahira. Prem, now back to you. What are your thoughts? हमने सब पैनलिस्ट को सुना, आपने अपना what do you think has been missed out, which can be, और एक पर्टिकुलर सवाल भी आया है कि उसकी मदर को है, एंटीबायोटिक्स क्या लेना चाहिए. I don't know who will handle that, but over to you, Prem. Yeah, so I think, I mean, all the speakers have sort of elaborated quite nicely. I mean, when we go back to, I think, Sudeshna ma'am, I would want her to just, and even maybe Raina sir, both can also maybe cover a bit of prolapse as well. I think it was covered in a way, but just for people to understand, because I think कभी-कभी क्या होता है कि बहुत सारे बुजुर्ग सिर्फ पेशाब छूट रहा होता है, कारण उनको पता नहीं रहता है, और फिर कंप्लेन के साथ आते तो हैं। फिर एक बहुत स्पेसिफिक चीज कभी-कभी हम पूछते हैं कि आपको कुछ मतलब कुछ फीलिंग हो रही है नीचे का, उनको समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली। पर जब एग्जामिन करते हैं, इसीलिए मैं मैंडेटरली हमेशा बोलता हूँ कि अगर उम्र आपकी बढ़ती है, स्पेशली स्त्रियों को, कि आप प्लीज गायनेकोलॉजिकल एग्जामिनेशन भी कराइए। क्योंकि क्या है कि ऐसा नहीं है कि एक बार मेनोपॉज हो गया, या एक बार ऑफ कोर्स बच्चे की क्षमता नहीं है, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपकी गायनेकोलॉजिकल सिस्टम खत्म हो चुकी है, क्योंकि उसमें काफी चेंजेस आते हैं, जिसमें ऑब्वियसली सुदेशना मैम ज्यादा बेहतर बता पाएंगी। पर मैं बोल क्यों रहा हूँ, क्योंकि उस पर ज्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अगर कुछ इश्यू हो तो ही दिखाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेनोपॉज होने के बाद ब्लीडिंग हो तो दिखाया जाता है, नहीं तो ऐसे नहीं कि हमें रूटीनली अगर पेशाब छूट रहा हो तो हमेशा हमेशा हम करते हैं, वैसे कुछ बोला नहीं जाता। सबसे बड़ा कॉन्सिक्वेंस मैं बोल सकता हूँ, अगर इफ आई हैव टू जस्ट से कि यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का क्या कॉन्सिक्वेंस है, एक है जो दिखता है और एक है जो नहीं दिखता है। नहीं दिखता है वो तो साइकोलॉजिकल है, जिसके वो जो 3 A's वाला वे में जो मायरा ने बताया वो बहुत ही अच्छा है। पर एक्सेप्टेंस में ये मत कीजिएगा कभी कि वो नॉर्मल पार्ट ऑफ एजिंग है। मैं बार बार ये बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा ही सोचते हैं। क्यों दिखाना? आई विल गिव एन एग्जांपल ऑफ एक घर पे आप एक होम मेकर हैं, वाइफ, कभी कभी टैबू ये रहता है कि बोलना किसे है। अपने सन को बोलूं कि मेरे को मेरे यूरिन पे कंट्रोल नहीं है, या मेरे हस्बैंड को बोलूं, या मेरी डॉटर इन लॉ को बोलूं। तो कभी कभी वो जैसे सर बोल रहे थे कि मतलब ऑब्जर्वेशन, इसलिए केयर गिवर्स को कभी कभी ऑब्जर्व करना होता है, शायद वो कभी बताएंगे नहीं खुद। फिर जब इन्फेक्शन हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सीरियस अगर थोड़ा हो जाए तो एडमिशन होने के बाद हो ही जाता है। पर खुद ये एक्सेप्टेंस लाना कि हमें डॉक्टर को भी दिखाना चाहिए, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और जस्ट टू ऐड व्हाट डॉक्टर रैना सर सेड, मल्टी डिसिप्लिनरी जिसको हम कहते हैं, बुजुर्ग लोगों को हेल्प करना, स्पेशली पेशाब छूटने के लिए, ये किसी से अकेले नहीं होता है। ये साथ में बैठकर ही किया जाता है, तालमेल के साथ किया जाता है, ताकि आपकी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है और स्वतंत्रता है उसको हम जितना ज्यादा रख पाए उतना बेहतर है। हमें ये सोच के नहीं चलना चाहिए कि ऐसा चल रहा है तो ऐसा ही चलने दो, अगर करना पड़े सर्जरी तो क्या, उसके बाद क्या। तो वो सब चीजें मैं बार बार बोलता हूँ, और मैं बहुत ही सिंपल कथन है कि जो चीजें आपके कंट्रोल में है, डॉक्टर को दिखाना आपके कंट्रोल में है। अगर कुछ मिलता है तो अच्छा ही है ना, उसको ट्रीट कर देते हैं। अगर कुछ नहीं मिलता है तो आपको बता दिया जाएगा कि कुछ नहीं है। तो इस चीज को मान के रहिए ताकि आप आगे चल के हेल्प सीख कर सके। आई थिंक दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। हेल्प है, ट्रीटमेंट है, पर हम सोचते नहीं है कि हमें पूछना चाहिए। और ये कभी भी नहीं होना चाहिए इस उम्र में क्या हेल्प मिलेगी, नो, दैट इज नॉट, ऐसा कुछ सोचना ही नहीं चाहिए। आपको फुल राइट है कि आप जितना स्वतंत्र हो सके उतना आपको होना चाहिए। तो हेल्प जरूर सीख करें। पेशाब छूट जाने को कंट्रोल करने में हेल्प सीख करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कभी कभी छुपे रहता है
और इस स्थिति तक छुपे छुपे रहता है कि मतलब बहुत हालत खराब हो जाती है, फिर भर्ती होते हैं, फिर जाके समझ में आता है कि नहीं ये ठीक किया जा सकता। Thank you, Dr. Prem. And final round of questions. डॉक्टर रायना, अगर आपको लग रहा है कुछ पॉइंट्स मिस हुए हैं कोई पैनलिस्ट से, आप क्या चाहोगे ऑडियंस को बोलने के लिए? जैसे एक सवाल है कि मेरी मदर को है, एंटीबायोटिक्स लेना चाहिए, ऐसे तो जनरली आपको जनरल पर्पस में समराइज करना चाहोगे फ्रॉम योर स्टैंड पॉइंट? Sir, you're on mute, sir. Sir, you're on mute. Yeah. Sir, We just can't unmute hear you, yourself. Dr. Raina. We still can't hear you. Can you hear me now? Yeah. Yes. You know, I'm really impressed with my panelists because there are few things which I was thinking of speaking. They have said it so beautifully. अब मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ कि मेरी उम्र अभी काफी 70 साल तक आ गया मैं। हमने एक सोसाइटी लॉन्च की थी, पेल्विक फ्लो सोसाइटी। इसलिए लॉन्च की थी कि हम सब अकेले काम कर रहे थे, तो हमने सोचा कि हम अगर अकेला काम नहीं करेंगे और इकट्ठे काम करेंगे तो कितना अच्छा होता। तो ये सब उन्होंने बोल दिया। अब उसमें क्या है कि हम हर एक किस्म के इनकॉन्टिनेंस देखते हैं। दूसरी बात यह है कि मैंने एक फिस्टुला की बात की थी, यूरिनरी फिस्टुला, वेसाइको वजाइनल फिस्टुला, जो हमेशा वो गीले रहते हैं। 1987 में मैं एडिस अबाबा गया था, वहां एक फिस्टुला हॉस्पिटल था जहां जितने भी लोग फिस्टुला थे बेचारे घूम घूम के वहां जाते थे, और जो वहां के जो मरीज ठीक हुए उन्होंने उस हॉस्पिटल में नर्सेस के माफिक काम किया, एक दूसरे को हेल्प कर रहे थे। अभी जितने भी इनकॉन्टिनेंस होते हैं उम्र में, अगर ये पूरे इकट्ठे काम करेंगे तो एक ऐसे कि एक जगह हो सकता है या एक दूसरे को हेल्प कर सकते हैं। फाइनली मैं इतना कहना चाहता हूं कि हर एक इनकॉन्टिनेंस के लिए आज इलाज है, मगर वो इलाज पहले सिंपल होना चाहिए, फिर इट शुड बिकम मोर कॉम्प्लिकेटेड। एक्सरसाइजिंग, पेल्विक फ्लो एक्सरसाइजेस जो इतनी जरूरी है मगर लोग नहीं करते हैं। योगा जिससे मसल स्ट्रेंथनिंग हो जाते हैं, वो नहीं करते हैं। तो अगर हम सब इकट्ठे बैठ के इनकॉन्टिनेंस ट्रीट करें, देन आई थिंक नाउ यूरिनरी इन्फेक्शन के हम एकदम एंटीबायोटिक देते हैं, वो बिल्कुल गलत है। अगर हम इन्फेक्शन के लिए यूरिन कल्चर करें और देखें कि कौन सा एंटीबायोटिक सही है, लोकल एंटीबायोटिक क्रीम लगा देते हैं, उनको बोलने गर्म पानी में बैठने के लिए, काफी इन्फेक्शन ठीक हो जा सकता है। थैंक यू। That was a very practical, and I really like your spirit, Dr. Raina, being such a senior man, and you're trying to take the collective healthcare thought process. We need more people like you, sir, who think similarly, so that the problem can be solved to a large extent. And thank you, really appreciate your input. And now, Dr. Sudarshana, you were listening to us, but last time आपने जो comment किया, again, because we are closer to our time, आपके comments क्या होंगे? Because you heard all the esteemed panelists. What do you like to add which you think we have missed out on? So the main thing that everybody has like not spoken is how to prevent. ये सब प्रॉब्लम्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एक तो होता है कि एल्डरली एज में होता है तो उसका इलाज करना, लेकिन इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एक ये यंग एज में स्टार्ट होता है, तो ये यंग एज से ही, जैसे प्रेगनेंसी होता है तो पेल्विक फ्लोर मसल्स को स्ट्रेंथन करना, या जब भी थोड़ा सा यूरिन लीक होता है इवन विदाउट अ प्रेगनेंसी, तो इमीडिएटली उसको मतलब फिजियोथेरेपी से या एक्सरसाइज से या योगा, डॉक्टर रायना ने जैसे बोला कि ये सब करके आप, जैसे पेशाब अगर बाहर नहीं जाना है तो पेशाब रुक के रखना, 6-8 घंटा पेशाब नहीं करे तो ब्लैडर धीरे धीरे लूज हो जाता है। सो देयर आर वेज टू प्रिवेंट सच प्रॉब्लम्स
there will be certain inevitable problems, and for those inevitable problems there is a solution, but you can also prevent them by taking the right steps at the right time, not again repeating the same thing, not ignoring that ये तो होना ही है और ये तो होता ही है. तभी से अगर आप केयर लेंगे तो बाद में इतना प्रॉब्लम नहीं होता है. और मेनोपॉज के बाद सिंपल ट्रीटमेंट्स लाइक इवन ऑइंटमेंट, मतलब एक क्रीम होता है हार्मोनल क्रीम, वो अगर यूज करेंगे तो काफी सारा यूरिनरी कंप्लेंट्स जो होता है फ्रीक्वेंसी का, या बार बार मतलब अर्ज जो लग रहा है इसका, या रॉनेस जो होता है वो एरिया का, एक अनकंफर्टेबल फीलिंग, डिस्कम्फर्ट होता है, वो चीज एकदम सिंपली एक ऑइंटमेंट से भी ट्रीट हो सकता है. सो अगेन रिटेरिटिंग द सेम वर्ड्स, बट एडिंग दैट आप अगर प्रिवेंट कर सकते हो यंग एज में तो उसको आप प्रिवेंट करो. Thank you so much. Mahira, your final comments. So I have just one suggestion to add, because अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग खुद के लिए करने में विश्वास ही नहीं रखते हैं. ठीक है ना, मेरा प्रॉब्लम है, चलो इग्नोर करो. स्पेशली मदर्स, होम केयर टेकर्स, दे फील लाइक ठीक है ना, अभी मुझे किसी को तकलीफ नहीं देनी है ना, जब तक ये चल रहा है ठीक से ठीक हो जाएगा, खुद से ही ठीक हो जाएगा, तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. उनके लिए ये मैसेज है अक्सर कि आपको जानना जरूरी है कि आपके इस प्रॉब्लम का सल्यूशन ना ढूंढने से आगे जाके आप ही के परिवार को और तकलीफ होगी. क्योंकि जैसे डॉक्टर प्रेम बता रहे थे, अगर प्रॉब्लम शुरुआत में ही उसका सल्यूशन नहीं ढूंढ लिया तो वर्स होगा मतलब ट्रीटमेंट का जो सिंपल सल्यूशन था वो एडमिशन में जाएगा, जो चीज दवाई से हो सकती थी उसके लिए शायद और इंटेंस ट्रीटमेंट होगा. और इसीलिए ताकि वो तकलीफ ना हो, क्योंकि जैसे ही वर्स होता जाएगा तो रिलेशनशिप्स में भी करार आता है. अक्सर काफी वो फ्रिक्शन अवॉइड करने के लिए उनको बाद में तकलीफ ना हो, तो अभी ये प्रॉब्लम अगर आपको हो रहा है तो आप उसको एक्नॉलेज करें और हेल्प सीख करें. वो लास्ट मेरा पॉइंट था. एक सवाल मुझे था कि जैसे डॉक्टर रे कह रही थी, कुछ अगर मैं प्रैक्टिकल कुछ ऐसा एक्सरसाइज है, ये मेरा खुद का भी क्वेश्चन है कि मैं अब से अगर फॉर एग्जांपल मुझे अभी कोई यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम नहीं है, तो ऐसा कोई एक्सरसाइज है स्पेसिफिक या कोई स्ट्रैटेजी है जो हम कर सकते हैं, या तो यूजुअली पेशाब में a lot of the time they say when you have the urge, start, stop, hold and then restart. Can I do anything to help myself from preventing to get on an everyday basis? So that's my question to the three doctors back. So yes, कीगल्स एक्सरसाइज जो होता है कि आप मसल्स को थोड़ा हल्का से, बहुत ज्यादा नहीं, हल्का से मसल्स को नीचे, यूरिनरी मसल्स या वेजाइनल मसल्स को थोड़ा पुल इन करके अपने नाभि की तरफ हल्का से ले लो और उसको 1 2 3 4 करके होल्ड करो और धीरे धीरे उसको छोड़ो. दिस इज कॉल्ड कीगल्स एक्सरसाइज. वेरी सिंपल टू डू. जैसे हम बाहर कहीं जाते हैं और फाट निकल आती है, तो फाट को कैसे हम कंट्रोल करेंगे, उतना ही स्ट्रेंथ पे मसल्स को हल्का से पुल इन करना और धीरे से छोड़ना. ये एक इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव एक्सरसाइज है. और सेकंड इम्पोर्टेंट प्रिवेंटिव, जैसे आपको ये अर्ज का प्रॉब्लम आ रहा है कि अर्ज अगर आता है तो मैं कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, तो तुरंत उसको ब्लैडर ड्रिलिंग एक्सरसाइज में, मतलब आपको वेट नहीं करना है जब तक आपको पेशाब लगे तब तक. Every 2-3 hours you should go and sit on the pot and then control, sitting on the pot, control your urinary, matlab you don't let go the urine. Even if you can do it for 30 seconds, 40 seconds and धीरे धीरे उसको 1 मिनट तक आप अगर कंट्रोल कर सकते हो पॉट में बैठ के भी, तो वो ब्लैडर स्ट्रेंथनिंग करता है. तो these are things which can be done as an early intervention या prevention. Thank Thank you. you. And Prem, final thoughts. Yeah, I actually had
I mean, I just wanted to get Raina sir in for a quick comment before this ends. It has always been thought by people कि Kegels exercises only should be done in females. Is it a myth कि Kegels exercises males में भी कर सकते हैं? Number one. And number two ये है कि हमेशा जब होता है, I mean that this is my comment, of course. The first one was question to sir कि कभी भी आप अगर आपको प्रॉब्लम हो रही है तो फिर उससे पहले जैसे मैंने प्रिवेंशन की बात की थी, तो एक बहुत सिंपल चीज है, कॉन्स्टिपेशन भी होना नहीं चाहिए। कभी कभी क्या होता है, अगर आपको कॉन्स्टिपेशन या कब्जियत बहुत लंबे अरसे से होगी तो उससे भी आपको बाद में आगे जाके यूरिनरी प्रॉब्लम्स, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकता है। और पानी की मात्रा, आप कितना पानी पी रहे हैं, कब पी रहे हैं। अगर आप 6 बजे के बाद फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा पानी पी रहे हैं, 2 लीटर 3 लीटर 4 लीटर, तो कभी कभी आपको शायद मे बी निकल के आपको उठना भी पड़ सकता है और रात को उठ के जाना भी पड़ सकता है। फिर थोड़ी सी मतलब मेरी तरफ से एक बहुत सिंपल चीज है जो मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि हम हमेशा कॉन्सेंट्रेट प्रॉब्लम पे करते हैं पर सिंपल सोल्यूशन कभी कभी होता है वो नहीं करते। जैसे आपको पेशाब रात को जाना है पर बाथरूम बहुत दूर है, तो तब तक पहुंचते पहुंचते अगर पेशाब छूट गया तो फिर तो आप आपके पेशाब पे ही गिर सकते हैं। तो इसीलिए जो डिस्टेंस रहता है, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे वैसे डिस्टेंस बिटवीन द बाथरूम और आपका बेड उतना नहीं होना चाहिए। और लाइटिंग भी अच्छी खासी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग मिले जो अपने खुद के पेशाब में गिर गए हों और फिर पेशाब छूटना एक सर दर्द है, उसके ऊपर गिर जाके अगर कुछ और मतलब हड्डी वड्डी टूट गई तो वो अलग सर दर्द है। तो इसीलिए हम हमेशा हमेशा हमें ये सोचने की जरूरत है कि प्रिवेंट में हम क्या कर सकते हैं, तो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। That's of course my final comments. I'm not sure if Raina sir is still around. I think he's there, but he's on mute. So Prem, thank you very much for Can your you hear me input. now? Yeah, yes, sir. Yes. I think Prem wanted one input from you, and after that, we Well, will the go. thing is, he's asked me a question. Does pelvic floor exercises, Kegel exercises, only for women? You see, Kegel exercises was meant for women basically because postpartum, after they've delivered. But Kegel exercises is a set of pelvic floor exercises. Man also has a pelvic floor, but man's pelvic floor is a little bit different from the female pelvic floor. Now, here in a man, you have to make sure you're not constipated. Constipation can give rise to a lot of urinary incontinence because you're not emptying your bladder fully. So constipation, a man should not have. Secondly, the pelvic floor exercises in a man is basically on his anal tone. His anal tone should be good. So you have to teach him that, which is going to help him post-prostatectomy incontinence. And finally, gym is a very important thing. The man, what happens is after a certain age, has a lot of fat on the belly. All his testosterone, free testosterone, goes to his belly. And because the free testosterone goes to his belly, his normal testosterone may be normal. But his free testosterone, which is the testosterone you need, has diminished. So he must check his testosterone levels. And his anal sphincter tone should be good. And his pelvic floor exercises is basically his abdominal exercises. And that is the difference between females with Kegel exercises and men with pelvic floor exercises. I hope that Thank answers you. my question. Thank you. Yeah, sir. So Thank you. beautifully explained. That can only come with so much experience, I guess, simplifying the complicated. So with all this, as always, we respect the time, and we'd like to thank all the panelists for sparing the time on a weekend, on a Saturday. And there are so many social commitments as medical people you all have in life. Thank you for joining, and we will keep reaching out to you whenever there is a need and time for different topics, as we do in Graceful Living. हम अलग-अलग subject पे बात करते रहते हैं, especially to deal with senior citizen and the caregivers. So thank you once again, and Thank you. stay safe. And Thank you for inviting me, and thank you, my Thank dear you friend. for inviting. Thank you. Thank you so much, everybody. Thanks, My Myra. pleasure. Thanks, Prem. Bye for now. Thank you. Thank you, sir. Thanks, Prem. Thank bless you. you. Bye-bye. God bless you all.
Thank you. Rana. Thank you, sir. Thank you all. Thank you, Dr. Prem. Thank you. Thanks to all. Very nice, informative information. Most welcome. Our pleasure. Very well explained. That was very important. And we people, we feel that we are in a haste and we do this and that and we listen, but very well explained. God bless you all. God bless you all. Thank you so much. Thanks to Graceful Living also and Yes, all of you. it is, of course, that is the main, this thing, center. We got all our queries solved in this lecture. Yes. I Thank have you very much. and yes, but these things are I understood that this stress and mental this thing and loneliness and this is financial problems. These are the things which, yes, it's not from, but I will take interest and I will do it. Thank you so much. God bless you. Once again. All the diseases first is the mental health. Whatever it is, acceptance is the first. Then only we can treat ourselves. Thank Then you we are very more much. than So half the battle nicely. done. Really, Thank you so much. you have given 3 years very nicely explained. Really. Thank you. Thank you so First much. is Sushant. acceptance. Thank you Good so much. evening to all. Take care. Have a lovely weekend. Same to you. Same to you, all of you. Bye. We can leave now.